गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. एम आई ऑडिबल, विजिबल, प्रॉपर्ली? टाइप इन चैट बॉक्स. हेलो नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. And my friends, I welcome all of you to this session where we are going to solve the beautiful, beautiful questions of Pick and Ask. So, are you ready? आप लोग ready हैं? Yes, 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 yes. So, my friend, those who are coming first time to our YouTube channel, Unacademy Gate MEPIXE, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm Mechanical Head, Unacademy Brands, Gate All India Rank 1, 2019, 20 Engineering Sciences Paper, All India Rank 1, Bank Note Paper Mill. I completed my Masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and DSC since 9+ years. Till now, I have mentored more than 50,000 students in online, offline, and seminar mode. Asutosh, how are you, beta? Oh my God, as I told you, my friends, in Negistan, the moment you are using Negi 10 for joining Unacademy Plus, you will be getting the entry to Negistan, where the complete thermal and fluid I am going to teach, and the remaining subjects will be taught by the top educators on Unacademy Plus. तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड नेगी 10, बिकॉज आज से स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. Uma sir is starting engineering mathematics from 2nd of April. Timings are 9:30 p.m. to 11:30 p.m. तो फटाफट से यूज करेंगे रेफरल कोड नेगी10 and you'll be joining Unacademy Plus. The moment you are using Negi10, I'm going to mentor you personally. I'm going to nurture you personally. I will make sure your dreams are coming true. The only one thing which you have to do is you have to be ready to work hard. बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, यही काम है हमको करना. So my friends, other than this, already heat transfer चल रहा है नेगिस्तान में. From 22nd of March I started heat transfer. 24th of March we started manufacturing sciences, metal cutting and all we started, and of course from 3rd of May I will be starting thermodynamics on Unacademy Plus. ठीक है? And one more thing बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे. If you want to get the notes of the class, then you can join this Telegram channel Negi 10. Already more than 7.5 thousand Negi soldiers are there, है ना? This is the link. And of course, beta, as you know, I'm taking the free special classes not only on YouTube. I'm taking on Unacademy platform also. Unacademy free special classes I'm taking. So if you don't want to miss my free special classes, then what you are going to do is just search my name on Unacademy platform and follow me. Again, there are more than 10,000 students who are following me to make their preparation easy. Okay? Good evening, good evening, good evening. कैसे हैं आप लोग बेटा? चलिए, enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code रे बाबा? What is the invite code रे बाबा? Invite code, invite code. There is only one invite code for Negi sir and Negi soldiers. What is that? What is that? नेगी10, नेगी10, नेगी10. ये हुई ना बात. चलो अटेंडेंस लगा देंगे बेटा फटाफट से. मार्क योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस. देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है, देखते हैं कौन कौन नेगी सोल्जर प्रेजेंट है रे बाबा. मार्क योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस. फटाफट से मार्क करेंगे. कैसे करनी है आपको अटेंडेंस मार्क? आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे प्रेजेंट सर और हिट करेंगे लाइक बटन रे बाबा. That's how you are going to mark. Yes, Hemant is present, Navneet is present, Vijay is present, Nitish is present. Today we are going to solve the questions, problems of Pikenag edition 5, fifth edition के problems करने वाले हैं. Present sir, present sir, present sir. Yes, yes, very good, very good. चलो सूरज भी present है, नवनीत, विजय, नीतीश, विकास, आशुतोष, गौरव, सूरज are present. चलो let us start the questions beta. Let us start the questions. In a cyclic process is given. Heat transfers are plus 14.7 kilojoule, minus 25.2 kilojoule, minus 3.56 kilojoule and plus 31.5 kilojoule.
what is the net work for this cyclic process? He is asking net work interaction for the cyclic process. My friends, you are already aware of this. ये तो आपको पता है. You are already aware of this. What is that? You are already aware of this. For cyclic process. For cyclic process, what happens, beta? If I am having the cyclic process, what is going to happen? For cyclic process, what will happen? Anyone in the class can tell me? For cyclic process, what will happen? फटाफट से बताओ इसका आंसर. Come on, everyone. Question number 4.2, fifth edition. Can I say summation Q is equal to summation W? Alright, summation Q is what? Net heat interactions. Summation W is what? Network interactions. है ना? Question में क्या पूछ रहा है? What is the network interaction? Summation W he is asking. So summation W is nothing, it is summation Q. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. प्लस 14.7 माइनस 25.2 माइनस 3.56 प्लस 31.5. बताओ बेटा सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग फॉर द नेटवर्क इंटरेक्शन? फटाफट से बता देंगे बेटा. व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग फॉर द नेटवर्क इंटरेक्शन? कैन आई से 17.44 17.44 kilojoule. I want to know one thing. Any intelligent student of the class can tell me this is power producing cycle or power consuming cycle? This is a power producing cycle or power consuming cycle? What can you comment about this? What can you comment about this? ये power producing cycle है या power consuming cycle है रे बाबा? This is power producing cycle or power consuming cycle? Beta, network interaction is coming positive. And if network interaction is coming positive 100%, this is what? This is what? Power producing cycle. है ना? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है. ये तो इजी क्वेश्चन है रे बाबा. ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था रे बाबा पीके नाक का. चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पढ़ते हैं. लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 4.3 पेज नंबर 95. Fifth edition we are talking about. A slow chemical reaction takes place in a fluid at a constant pressure of 0.1 megapascal. Okay, constant pressure is given beta. Whatever the reaction is taking place in a fluid that is taking place at constant pressure 0.1 megapascal. The fluid is surrounded by a perfect heat insulator during the reaction, which begins at state 1 and ends at state 2. Fine, fine, fine. During the process 1 to 2, what is happening? Fluid is surrounded by a perfect heat insulator. That means during the process 1 to 2, there is no heat interaction. During the process 1 to 2, the fluid is surrounded by the perfect heat insulator. That means during the process 1 to 2, there is no heat interaction. The insulation is then removed. Insulation को हटा दिया गया है and 105 kilojoule of heat flow to the surrounding. Okay, okay. जैसे ही insulation हटाया, the moment we are removing the insulation at state 2, what is happening? 105 kilojoule of heat is flowing to the surrounding. That means heat is rejected by the fluid and the fluid goes to state 3 और fluid state 3 पर आ जाता है. The following data are observed for the fluid at state 1, 2 and 3. This is state 1, 2 and 3. Volumes are given beta at state 1, 2 and 3. Volumes are given. Temperatures are given at state 1, 2 and 3. What they are asking for the fluid system. Let us suppose fluid is your system. Calculate E2 energy at 2 and E3 energy at 3 state 3. If E1 is 0, let us assume energy at the state 1 is 0. Then he is asking what will be the energy at state 2 and energy at state 3. कैसे करने वाले हैं रे बाबा? How are you going to solve this problem? How are you going to solve this problem बेटा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. We are going to use first law of thermodynamics for a process. We are going to use first law of thermodynamics for a process. देखना बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? I hope everyone is clear.
Everyone is clear with the question? According to, or champa, according to what? According to what? According to first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics for a process. For a process. What are we getting? Q is equal to what? Q1 to 2. Process 1 to 2 के लिए लिख रहा हूं. Q is equal to what? W1 to 2 plus delta E1 to 2. Fine है रे बाबा. Anyone in the class can tell me? बोलो रे बेटा. Tell me clearly. बोलो रे बाबा. For the process 1 to 2, what is the heat interaction बेटा? What is the? Thank you so much बेटा अनुराग. What is the heat interaction? जल्दी से बोलेंगे. What is the heat interaction for the process 1 to 2? What is the heat interaction? Are champo, I'm having heat insulator na, so there will be no heat interaction. If I'm assuming this fluid to be my system, there will be no heat interaction. That means 100%. What I'm getting? ध्यान से देखना बेटा. Work interaction for the process 1 to 2, delta E 1 to 2. That means E2 minus E1 is equal to शून्य. So what is E2 रे बाबा? What is E2 रे बाबा? What is E2? E2 is equal to E1 minus W1 to 2. अब ये W1 to 2 कैसे निकलेगा रे बाबा? I'm having isobaric process. I'm having isobaric process. Anyone in the class can tell me how to find the work interaction for isobaric process बेटा? ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसके लिए वर्क इंटरेक्शन कैसे निकालेंगे रे बाबा? अरे चंपू, आई हैव टोल्ड यू ना रे बाबा. P delta V. P delta V is the formula. Yes, P delta V. So can I say, अरे यार चंपू, E1 is 0. It is given in the question. शून्य. Yes. So what is E2 we are getting? E2 is equal to what? Minus P delta V. V2 minus V1. रखो रे बाबा वैल्यू. What is the pressure given in the question? किसी ने देखा था कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया था बेटा? 0.1 megapascal. 0.1 megapascal means 10 to power 5 pascal. If I want to write in kilopascal, I will be writing 100. I will be writing 100 kilopascal. Yes or no? I will be writing 100 kilopascal. सोचो. What is E2 we are getting? I want to get in kilopascal. So pressure is 100 kilopascal, right? V2. What is V2 given in the question? What is V2 given in the question? 0.3. 0.3 minus 0.003. बेटा बताओ कितना आंसर आ रहा है? What is the energy at state 2 I am having? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा. What is the energy at state 2 I am having for this question? सॉल्व करो रे बाबा. फटाफट से बता देंगे बेटा. फटाफट से बता देंगे रे बाबा. minus 20.29.7. Can I say minus what? 29.7 kilojoule. फटाफट से कंफर्म करो. सबका यही आ रहा है. I hope everyone is getting the same answer. I hope everyone is getting the same answer. This we have written for the process 1 to 2. Excellent है रे बाबा. अरे पीके नाग बुक को कच्चा चबा जाएंगे रे बाबा. नेगी सोल्जर्स पीके नाग बुक को कच्चा चबा जाएंगे रे बाबा. पूरी पीके नाग सॉल्व करने वाले हैं. संजल बोल सॉल्व करने वाले हैं. मॉरन सपीरो के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं बेटा. बेहतरीन. एंड विल बी सॉल्विंग ओनली दोस क्वेश्चंस व्हिच आर रेलेवेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब करवाने वाला. आपको मजा आ जाएगा. चाहे वो डिफिकल्ट है, इजी है, चाहे वो एक लाइन के हैं, 2 लाइन के हैं, या फिर बड़ा कन्वेंशनल है, सब क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं यहीं पर ही. देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल नो द कॉन्सेप्ट, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अब हमको वो चीज नहीं करनी है बेटा. हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और मैं करवाऊंगा आपको. चलिए बेटा, उसने E3 भी पूछा है. ही इज आस्किंग E3 आल्सो.
सो अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा प्रोसेस 223 के लिए. सो कैन आई राइट Q223 is equal to W223 प्लस डेल्टा E223. अब ध्यान से देखना बेटा, Q223 is equal to W223 will be what? Constant pressure V3 minus V2. Delta E223 will be what? Energy at state 3 minus energy at state 2. अरे फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा. So can I say E3 is equal to what? बेटा ध्यान से देखना, Q223 प्लस E2 माइनस P V3 माइनस V2 है ना. अब देखो Q223 बेटा ध्यान से देखना, लिसन केयरफुली रे बाबा. चंपा क्या बोल रहा है? The insulation is then removed and 105 kilojoule of heat flow to the surroundings. बेटा हीट बाहर जा रही है. Heat is getting rejected. If heat is getting rejected, I should take positive or negative 100% without any doubt. I should take negative. So heat interaction is minus 105 kilojoule. एक चीज आपके सामने लिखूंगा बेटा, एक चीज आपके सामने लिखने वाला हूं, प्लीज ऑब्जर्व. माइनस 105 किलोजूल प्लस E2 तो निकाला था रे बाबा, माइनस 29.7. इसकी कहानी खत्म. माइनस प्रेशर इज 100 किलो पास्कल. V3 देखो बेटा फटाफट से 0.06 माइनस V2 0.3. बेटा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3 you people are getting in kilojule. फटाफट से कंफर्म कर देंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3 you people are getting. फटाफट से कंफर्म करो, कितना आ रहा है बेटा आप लोग का? E3 कंफर्म कर दो बेटा. नवनीत इज सेइंग माइनस 110.7 किलोजूल. बाकी लोग कंफर्म करो, बेटा. मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए बेटा. नोटबुक लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, झमाझम तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो थर्मोडायनामिक्स का आएगा और आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना. माइनस 110.7 माइनस 1, अरे मैचिंग है रे बाबा. माइनस 110.7 किलोजूल है रे बाबा. एक्सीलेंट. चंपा छा गए गुरु. एक्सीलेंट. कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बना लिया बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बोलो रे बाबा. एक्सीलेंट है रे बाबा. सही है. यस. एक्सीलेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे बाबा? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4.4, पेज नंबर 95. ड्यूरिंग वन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड in an engine engages two work interactions. अच्छा, 2 वर्क इंटरेक्शन हो रहे हैं. 15 किलोजूल टू द फ्लूइड एंड 44 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड. ध्यान से देखना बेटा. चंपा look at here carefully. Let us suppose this is fluid. Champu, let us suppose this is fluid. And this fluid is my system, and let us suppose this fluid is my system. So they have given some work interactions. First work interaction is 15 kilojoule to the fluid. तो देखो 15 kilojoule, W1 is given बेटा 15 kilojoule to the fluid. बेटा work done on the system as per our sign conventions we are taking negative. Work done
work done on the system we are taking negative. Another work interaction is given. Another work interaction is given 44 kilojoule from the fluid. 44 kilojoule from the fluid. That means work done by the system. W2 is given 44 kilojoule. And 3 heat interactions. अच्छा, 2 work interactions हैं, 3 heat interactions हैं, 2 of which are 75 kilojoule to the fluid, 40 kilojoule from the fluid. बेटा हीट इंट्रैक्शन हमने क्या जंक्शन लिया था साइन कन्वेंशन का? साइन कन्वेंशन का क्या जंक्शन लिया था बेटा? हमने लिया था हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, यानी कि दिस Q1 इज पॉजिटिव, है ना? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है 40 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड. देखो, दिस इज योर Q2, 40 kilojoule from the fluid, and of course when I will write as negative because it is the heat rejected. तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है the magnitude and direction of third heat transfer. बेटा cyclic process is given. Cyclic process is given. Cyclic process is given. Anyone in the class can tell me what is the meaning of cyclic process? देखो, can I write बेटा? According to what? According to first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics for a cycle. According to first law of thermodynamics for a cycle. What are we going to have beta? Summation Q is equal to summation W. There are 3 heat interactions. Q1, Q2, Q3. There are 2 work interactions. W1, W2. Let us substitute the value of Q1. Q1 is plus 75 heat supplied to the system. Q2 is how much? Minus 40 heat rejected by the system. Q3 I don't know whether it is heat supplied or heat rejected. W1 is how much beta? Work done on the system, minus 15. What is the W2? Work done by the system, plus 44. बेटा ये कंफर्म कर दो, ये सही है क्या? ये सही है क्या यार? यहां से Q3 बताओ. देखो, here I am getting 35 plus Q3 is equal to how much beta? How much I am getting? Can I say I am getting 29? यार ये Q3 कितना आ रहा है यहां से? बोलो रे बाबा चंपा, बोलो रे बाबा चंपा. What is the value of Q3 I am getting from here? 29 minus 35 minus 6 kilojoule. I hope you are able to understand what is the meaning of this minus. What is the meaning of this minus रे बाबा चंपा? इसका मतलब है, देखो ध्यान से, इसका मतलब है, देखो यहां बना देता हूं, heat is getting rejected by the fluid and magnitude is 6 kilojoule. Yes or no? कंफर्म कर दो. ये बात समझ में आ गई बेटा? अरे क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा. यस, 6 किलोजूल फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग. एक्सीलेंट है रे बाबा. आर यू क्लियर टिल हियर? बोलो रे बाबा. ये तो बहुत ही झमाझम चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा आपको बता दूं मैं, फ्रॉम द मंडे और ट्यूसडे, मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर रिक्वेस्टिंग मी टू कंप्लीट फ्लूइड काइनेमेटिक्स पार्ट, क्योंकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स का बहुत वेटेज होता है गेट एग्जाम में. you can expect one question from here. So either Monday or Tuesday, या तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड दिस विल गो पैरेलली. these questions will go parallelly, है ना? ये क्वेश्चन तो पैरेलली चलते ही रहेंगे बाबा. no one is going to stop the question. every day 4 5 questions, 6 questions, है ना, वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो ये तो पैरेलली चलेंगे थर्मो के क्वेश्चंस, है ना. बट आई वांट टू डिस्कस फ्लूइड काइनेमेटिक्स इन अ झमाझम वे, है ना. उसमें पूरा डिस्कस करने वाला हूं बेटा, है ना, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. मजा आ जाएगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, ये गेट में आया हुआ है बेटा, ये वाला क्वेश्चन डिक्टो, ये वाला क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4.8 पेज नंबर 95। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्टेन फ्लूइड आर रिलेटेड एज फॉलोज। U, small u, specific internal energy is equal to 196 plus 0.718 T, is small v, T small v is equal to 0.287 T plus 273, where U is the specific internal energy in kilojoule per kg, T is in degree Celsius, P is pressure, and small v is specific volume in meter cube per kg. For this fluid find CV and CP। बेटा ये तो बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिक डेफिनेशन। जिन्होंने मेरे से थर्मो पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। बेटा बहुत ही इजी है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, देखो CV तो निकल जाएगा डायरेक्टली। CV इज इक्वल टू व्हाट, डो स्मॉल u बाय डो t at constant volume, so CV is equal to what, dou by dou t small u 196 plus 0.718 t। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू। अरे 196 का पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 0 हो जाएगा बेटा, केवल क्या बचेगा, अरे ये तो खत्म है रे बाबा। CV is equal to 0.718 kilojoule per kg per Kelvin, per kg per Kelvin। I hope everyone is clear till here। CV तो निकल गया, CP कैसे निकलेगा रे बाबा, हाउ टू फाइंड CP, बोलो रे बाबा, हाउ टू फाइंड CP, CP कैसे निकालेंगे। CV we are able to find, CV तो निकल गया, CP कैसे निकलेगा, उसके पहले स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालेंगे रे बाबा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक एंथैल्पी, first we have to find the specific enthalpy। how to find the specific enthalpy, small h is equal to small u plus p small v, है ना। so small h is equal to 196 plus 0.718 capital T, PV 0.287 T plus 273। दिस T इज इन डिग्री सेल्सियस बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो H इज इक्वल टू हाउ मच, स्मॉल h इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया था 196 प्लस 0.718 कैपिटल T प्लस व्हाट रे बाबा 0.287 capital T plus 0.287 into 273। बेटा ये आ गया आपका स्मॉल h। अब क्या करना है, CP निकालना है ना रे बाबा। मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग, डो h बाय डो t एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स इट। तो CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डो बाय डो t ऑफ दिस, कोई जरूरत नहीं एडिशन करने की, डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट विल बिकम जीरो। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव ओनली ना विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। तो टाइम वेस्ट मत करो, सर इसको मैं ऐड कर दूंगा, वो कर दूंगा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपो, डोंट डू एनीथिंग, चंपू रे बाबा, डोंट डू एनीथिंग। कैलकुलेशन बचा ले तू अगले क्वेश्चन के लिए, है ना, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है बेटा चंपू। देखो बेटा, you must be able to understand partial derivative of this will be zero, that's why I told you there is no need of calculation, partial derivative of this will be zero। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, partial derivative of this will be 0.718, partial derivative of this will be 0.287। तो अगर आप ऐड करेंगे, the moment you are adding you will be getting CP, बोलो रे बाबा, what is the value of CP you people are getting, 1.005 kilojoule per kg per Kelvin। कंफर्म कर देंगे। अरे मजा 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 मजा, बाकी लोग आंसर करो रे बाबा,
बाकी लोग आंसर करो रे बाबा, इसमें तो कुछ नहीं है। सीपीसीवी पूछा तो निकाल के फेंक दिया रे बाबा, सीपीसीवी। यस यस sir, your thermodynamics lectures on YouTube are awesome. Thank you for these lectures. Thank you so much beta, thank you so much, thank you so much. Ready for the next question, ready for the next question. बाकी लोग बोलो बेटा, आप लोग रेडी हैं? बाकी लोग बताइए, आप लोग रेडी है बेटा? अभी तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 करेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 करीबन 25-30 घंटा चलेगा, 25-30 आवर्स, क्योंकि मेरा तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत डिटेल में रहता है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स चलेगा, है ना। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर अटेंडेंस। अभी तो स्टार्ट नहीं होगा चैप्टर 5, इस महीने तो मुश्किल है। नॉट इन दिस मंथ बेटा, इस महीने तो अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे और फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 करेंगे, है ना। फिर देखते हैं कैसी अटेंडेंस रहती है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ब्लीक है, तो ठीक है। यस, ऑल नेगी सोल्जर्स आर रेडी। चलो 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 चलो, नेक्स्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, क्या बोला है ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4.9, पेज नंबर 95। A system composed of 2 kg of the above fluid। above fluid बोले तो ये वाला फ्लूइड बेटा, ये वाला फ्लूइड। above fluid बोले तो ये वाला फ्लूइड, जिसका Cv 0.718 किलोजूल पर केजी पर केल्विन है, Cp 1.005 किलोजूल पर केजी पर केल्विन है। A system composed of 2 kg of the above fluid expands in a frictionless piston and cylinder machine from an initial state of 1 megapascal 100 degree Celsius to a final temperature of 30 degree Celsius. If there is no heat transfer, find the net work for the process. Find the net work for the process. है ना, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बोलिए। There is no heat transfer. He is asking the net to work for the process. How to solve? According to first law of thermodynamics for a process, can I say Q is equal to W plus delta U? Of course, I'm assuming I'm having simple compressible stationary system, है ना। Heat interaction is zero. Heat interaction is zero. अरे क्या ही तो बात है रे बाबा, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है वर्क इंटरेक्शन। So work interaction will be equal to minus delta U. Of course, we are talking for the process 1 to 2. So minus, अच्छा डेल्टा U को क्या लिख सकता हूँ ये बताना तो। What can we write? डेल्टा U बेटा CV कांस्टेंट आ रहा था ना, CV was coming constant। बताओ क्या लिख सकते हैं? CPCV was coming constant। जल्दी से बताओ। हाँ, MCV डेल्टा T लिख दे। चलो, आई एम assuming the fluid is perfect gas, MCV डेल्टा T, है ना। CV डेल्टा T means what? T2 minus T1। अब देखो यार क्या होने वाला है। माइनस M
CV 0.718 डेल्टा T है ना। कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके, कंफर्म करो सॉल्व करके कितना आ रहा है आंसर। आर यू गेटिंग 100.52? माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? यू शुड गेट प्लस ना, आंसर शुड बी प्लस ना, प्लस 100.52। ये कंफर्म करो। ये कंफर्म कर दो फटाफट से। यही आ रहा है प्लस में है रे बाबा आंसर। आंसर इज इन प्लस, आंसर इज इन प्लस। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, है ना। यहां पर एक अजम्पशन है, मैंने परफेक्ट गैस माना है। I have assumed the fluid is perfect gas, ideal gas having constant specific heats, है ना। हाँ बेटा, थर्मो के क्वेश्चंस अपन लोग करवाते रहेंगे ना, क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे बेटा, क्वेश्चंस तो चलते रहने वाले हैं। नो वन कैन स्टॉप, नो वन कैन स्टॉप अस। बेटा क्वेश्चन नंबर 4.13 पेज नंबर 96, a mass of 8 kg gas expands within a flexible container so that the PV relationship, small v दिया है बेटा, is of the form P small v power 1.2 is equal to constant, ठीक है। The initial pressure is 100 kilopascal and the initial volume is 1 meter cube. The final pressure is 5 kilopascal if the specific internal energy of the gas, बेटा ये डिक्टो क्वेश्चन आया था, ये डिक्टो क्वेश्चन आया था 2020 एक्सी में या 2019 एक्सी में। ये क्वेश्चन मेरे सेट में आया था एक्सी वाले में, 2020 का क्वेश्चन है शायद। If the specific internal energy of the gas decreases by 40 kilojoule per kg, find the heat transfer in magnitude and direction, है ना। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करेंगे रे बाबा। मास इज गिवन, a mass of 8 kg gas expands within a flexible container। देखो इसको करो बेटा, फटाफट से करेंगे। मास इज गिवन 8 kg, है ना। P small v power 1.2 is equal to constant and we can write in this way also ना, वॉल्यूम बाय मास, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास तो कांस्टेंट है, सो पीवी पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम बात है बेटा, है ना। m पावर 1.2 विल बी कमिंग टू द राइट हैंड साइड, दैट विल बी कांस्टेंट। P1 इज गिवन बेटा, P1 इज गिवन, P1 कितना है 1000 किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल। V1 कितना है, V1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। P2 कितना है रे बाबा, P2 इज 5 किलो पास्कल, है ना। एंड डेल्टा स्मॉल u इज -40 किलो जूल पर केजी। हीट इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है बेटा। आपको क्या चाहिए, आपको V2 चाहिए, है ना। यू नीड टू फाइंड V2 ना बेटा, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है इसमें। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू, समझ में आ रहा है क्या करना है
चलो इसको यहीं बनाते हैं। देखो बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस गिवन है, आप बस किसी तरह से V2 निकाल लो, आपका काम खत्म। देखो वर्क इंटरेक्शन निकल जाएगा कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द वर्क इंटरेक्शन बेटा, P1 V1 माइनस व्हाट, P2 V2 अपॉन व्हाट बेटा, n माइनस 1, है ना। तो n तो 1.2 हो गया, P1 इज नोन, V1 इज नोन, P1 is 1000 kilopascal, V1 is 1 meter cube, P2 is 5 kilopascal. Somehow I need to find V2. V2 निकालो, W निकल जाएगा, delta small u is given. If you are multiplying with mass, you will be getting delta capital U. Heat interaction निकल जाएगा बेटा। आ रहा है आंसर? Yes, very good. 2612.4. अमर, very good बेटा, excellent है रे बाबा, छा गए गौरव, वेरी 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 हैप्पी बेटा, एक्सीलेंट। P1 V1 पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पावर n, सो 100%। V2 पावर n इज इक्वल टू व्हाट, P1 अपॉन P2 V1 पावर n, सो V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 अपॉन P2 पावर 1/1.2 इंटू V1, है ना। सो V2 इज इक्वल टू P1 इज 1000, P2 कितना है, 50 है, 5। यार मुझे बताना एक बार बेटा, हेल्प करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 वी आर गेटिंग, एक बार मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड योर हेल्प बेटा, आई नीड योर हेल्प। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, V2 एक बार बता दो बेटा, V2 कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वॉल्यूम वी आर गेटिंग, फाइनल वॉल्यूम में हेल्प कर दो यार, 82.703 मीटर क्यूब, अच्छा 82.703 मीटर क्यूब, V2 निकल गया। और जैसे ही V2 निकल गया, अब तो गेम बहुत इजी है रे बाबा, वर्क इंटरेक्शन विल बी व्हाट, P1 V1 1000 kilopascal into V1 minus P2 V2 upon n minus 1, 1.2 minus 1. What will be the work interaction बेटा, What will be the work interaction? वर्क इंट्रैक्शन बता दो कितना रहे, वर्क इंट्रैक्शन बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साइन। व्हाट इज द वर्क इंट्रैक्शन वी आर गेटिंग बेटा, वर्क इंट्रैक्शन की वैल्यू बता दो, इसको सॉल्व करके कितना रहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क इंट्रैक्शन, 2932.5। बाकी लोग कंफर्म करो, one of the student is saying sir 2932.5, अच्छा 2932.425, चलो ठीक है, जैसा आप लोग बोलो रे बाबा, चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये निकल गया बेटा वर्क इंट्रैक्शन, बट उसने पूछा हीट इंट्रैक्शन, तो हीट इंट्रैक्शन कैसे निकलेगा रे बाबा, हाउ टू फाइंड हीट इंट्रैक्शन, Q is equal to W plus delta capital U, W plus mass into delta small u, है ना। So Q is equal to what, W 2932
0.425, मास तो 8 kg था, डेल्टा यू कितना दिया था बेटा, डेल्टा स्मॉल यू बेसिकली -40 है ना। बताओ बेटा सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर वी पीपल आर गेटिंग। टू 2612.425। अच्छा चलो, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम। 2612.425। हाँ, ये देखो थोड़ी सी गलती है पीके नाक की आंसर की में। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज 2612.425 किलो जूल। देख लो हम लोग आंसर की भी करेक्ट कर रहे हैं बाबा पीके नाक के साथ साथ, जहां जहां गलती है ना। हो गया ये तो। मास मल्टीप्लाइड वाई, यूज योर ब्रेन बेटा, use your brain. Right from the beginning I'm writing each and everything. What is the meaning of specific internal energy change and what is the meaning of total internal energy change? शायद मैं ही एक ऐसा एडुकेटर होऊंगा, एक ऐसा टीचर होगा जो इतना बेसिक भी बोलता है कि डेल्टा स्मॉल यू मींस स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा कैपिटल यू मींस total internal energy change. Question: if specific internal energy of the gas decreases by 40 kilojoule per kg, kilojoule per kg beta, delta small u, not delta capital U. In the formula you are having delta capital U, Q is equal to W plus delta capital U. The equation is in kilojoule. Yes, correct है. Shall we go for the next question? No doubt, no doubt, no doubt. चले रे पापा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो 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 चलो। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें मजा आ जाएगा। वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्वेश्चन। पीके नाग फिफ्थ एडिशन 4.14 page number 96. A gas of mass 1.5 kg undergoes a quasi-static expansion which follows a relationship P is equal to A plus B V, where A and B are constants. The initial and final pressure are 1000 kilopascal and 200 kilopascal respectively, and the corresponding volumes are 0.20 meter cube and 1.20 meter cube. The specific internal energy of the gas is given by the relation small u is equal to 1.5 PV minus 85 kilojoule per kg, where P is in kilopascal and small v is in meter cube per kg. Calculate the net heat transfer. कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को? W तो निकल जाएगा, W तो निकल जाएगा, इजी है, W तो निकल जाएगा रे बाबा, W तो निकल जाएगा, डेल्टा U भी निकल जाना चाहिए। बट एक चीज ध्यान से देखना बेटा, हेयर कैपिटल V इज द वॉल्यूम, हेयर स्मॉल v इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ना, लिखा है स्मॉल v इज इन मीटर क्यूब पर केजी, करेक्ट है। देखो मैं डेटा लिखता हूं आप लोगों के लिए, मैं डेटा लिखता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। कैन आई से P1 इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल, कैन आई से P2 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल, है ना। कैन आई से V1 इज इक्वल टू 0.20 meter cube. Can I say V2 is equal to 1.20 meter cube? And how the pressure is varying with volume? P is equal to A plus B into V.
कोई बता सकता है प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है बेटा? कैन आई से लीनियरली? मुझे ये कंफर्म करो, कैन आई से प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली विद वॉल्यूम? कैन आई से प्रेशर इज वेरी, ठीक है रवि, कैन आई से प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली विद वॉल्यूम? यार एक बार बना के देख लेते ना, पीवी डायग्राम बना लेते हैं ना, लीनियरली वेरी कर रहा है तो पीवी डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो आप ए बी की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे को एक जो तरीका समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूं, एक बार देखना, क्या पता आपको ये इजी लगे, क्या पता आपको ये तरीका इजी लगे, है ना। मेरा काम है आपको सबसे इजीएस्ट तरीके से करवाना। प्रेशर वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल, फाइनल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल, है ना। Let me say this is in kilopascal. This line is representing P1 1000 kilopascal. This line is representing P2 200 kilopascal. Let me say this line is representing volume V1 0.2 meter cube. This line is representing volume 1.2 मीटर क्यूब, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, you must be able to understand this is the state 1, this is the state 2, can I say area under the curve? Area under the curve projected on volume axis will be giving me the magnitude of net work interaction, the magnitude of work interaction, not network, magnitude of work interaction, magnitude of displacement work for the process 1 to 2. Can I say W1 to 2 will be what? Half sum of parallel sides P1 plus P2 into perpendicular distance between them V2 minus V1. बेटा जैसे आप ऐसा लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क 1 to 2 क्या हो जाएगा? हाफ 1000 प्लस 200 ना, V2 minus V1 1.2 minus 0.2. Of course answer will come in kilojoule because I am taking pressure in kilopascal. तो यार ये 600 किलोजूल आ गया ना, 1200 बटा 2 600 किलोजूल, ये कंफर्म कर दो, हो गया ना बहुत इजी तरीके से। ये बताओ क्या परेशानी है इसमें? फिलहाल हीट इंटरेक्शन निकालने के लिए तो आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। अगर सिर्फ आपको हीट इंटरेक्शन निकालना है तो फिर ए बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेट लाइन है, फटाफट से पीवी डायग्राम बनाओ, वेरी इजी मेथड ना, फटाफट से पीवी डायग्राम बनाओ, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस निकाल लो, that will be giving you the magnitude of displacement work, and if you are having the expansion of course it will be positive only, है ना। पॉजिटिव क्यों होगा? पॉजिटिव इसलिए होगा बिकॉज एक्सपेंशन है, आपको समझ में आ गया होगा ना।
Why it's positive? Because volume is increasing. Remember, area will be giving you only the magnitude. एरिया से आपको केवल मैग्नीट्यूड मिलता है ना, लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग दैट मींस यू आर हैविंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव. इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग दैट मींस यू आर हैविंग कंप्रेशन, है ना. चलो ये आ गया. अब डेल्टा यू निकालना है, देखना बेटा ध्यान से. डेल्टा यू निकालते हैं. देखो, कैन आई से डेल्टा कैपिटल यू इज इक्वल टू mass delta small u. Delta capital U is equal to mass u2 minus u1 ना, small u2 minus small u1. Mass, what will be small u2? 1.5 p2 small v2 minus 85. 1.5 P2 small v2 minus 85. This is your small u2. What will be your small u1? 1.5 p1 is small v1 minus 85. बेटा ये 85 तो हो गया स्वाहा. This 85 and this 85 is स्वाहा. अरे स्वाहा हो गया रे बाबा. डेल्टा कैपिटल U is equal to m into 1.5. I have taken common. P2 is small v2 minus P1 is small v1. यार ये मास को अंदर डाल दो तो ये कैपिटल बन जाएगा ना, है ना. मास को अंदर डाल दो. सो डेल्टा कैपिटल U इज इक्वल टू 1.5, है ना, P2 कैपिटल V2 माइनस P1 कैपिटल V1. बस अब तो वैल्यूज रखनी है रे बाबा, अब तो झमाझम वैल्यूज रखनी है रे बाबा. 1.5 P2 V2 माइनस P1 V1 क्या था रे बाबा? P2 200, V2 1.2, 200 into 1.2 माइनस P1 1000 किलो पास्कल में लिख रहा हूं रे बाबा. 0.2. बताओ डेल्टा यू कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 200. 60 आ रहा है क्या? 1.5 इंटू 40, 60 किलो जूल आ रहा है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 60 किलो जूल आ रहा है क्या बेटा? 60 आ रहा है क्या? -90 आ रहा है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हाउ मच? 60 आ रहा है ना. ये मुझे कंफर्म कर दो, ये मुझे कंफर्म कर दो बेटा. हाउ मच इज दिस? सिक्सटी 90 आ रहा है. बता दो मुझे. नहीं, मैंने तो वो 1.5 से मल्टीप्लाई तो कर दिए वैसे. मास 1.5 केजी पुट नहीं किया सर. कर दिया ना बेटा, कर दिया. क्या किया ना मैंने, देखो मैं सब उतनी झंझट पालता ही नहीं हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो हो जाएगा. देखो ये मास था ना, इस मास को अंदर भेज दिया. सो मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 विल बी कैपिटल V2, टोटल वॉल्यूम एट स्टेट 2. मास इनटू स्मॉल v1 विल बी कैपिटल V1 एट स्टेट 1. तो मास मैंने अंदर भेज दिया, है ना. हाँ हाँ हाँ, यू कैन टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल. क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो. क्लियर हो गया? तो अगर डेल्टा यू 60 आ रहा है
एक बार ये कंफर्म कर दो, डेल्टा यू सबका 60 आ रहा है ना? देखो बेटा ये स्मॉल v था, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बेटा डोंट बी कंफ्यूज विद स्मॉल v एंड कैपिटल V। इन दिस स्मॉल u इक्वेशन, देखो स्मॉल u जो दिया है that is 1.5 p small v minus 85. this small v is a specific volume ना, total volume तो हो नहीं सकता, small u की बात हो रही है। so what I have done is I have taken that mass inside, so that a specific volume became total volume 60 है। ठीक है, देखो मैं तो, मेरा एम है आपको मिनिमम शॉर्टकट वे में बताना ना, शॉर्टकट तरीके से बताना। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, इन झमाझम वे, है ना। डेल्टा यू आ गया बेटा, जैसे ही डेल्टा यू आ गया, अब तो कुछ नहीं बचा। Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। W इज इक्वल टू 600, डेल्टा U इज इक्वल टू 60, किलो जूल। देखो ये आ गया आंसर। यही आ रहा है सबका? कंफर्म कर दो जितने लोगों का ये आ रहा है बेटा आंसर। किसी को कैलकुलेशन में कहीं डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को कैलकुलेशन में कहीं डाउट है तो पूछ लो बेटा। रिमेंबर दिस वाज स्मॉल v, डोंट बी कंफ्यूज, दिस वाज स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम, small v specific volume, small v specific volume. So what I have done is I sent this mass inside, so this mass will be getting multiplied with small v2 and it will become capital V2. This mass will be getting multiplied with the small v1 and that will become capital V1. In the question they have given total volumes na, not specific ones. V2 was given 1.2 meter cube, V1 was given 0.2 meter cube. Okay, बढ़िया से कर लिया सबने ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था ना बेटा, कभी भी आ सकता है। एनी टाइम दिस क्वेश्चन कैन कम इन गेट एग्जाम, एनी टाइम दिस क्वेश्चन कैन कम इन गेट एग्जाम। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यूज रखकर करवाओ, ए और बी की वैल्यूज रखकर करवाओ। बाप रे, लंबा कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हो बाबा। सर ए और बी की वैल्यूज से करवा दीजिए एक बार प्लीज। चलो कर लेते हैं, अब आप लोगों ने ऑर्डर किया है तो कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट उससे ही करता हूं। अनदर मेथड, P इज इक्वल टू A प्लस बी वी, है ना। तो 100% P1 इज इक्वल टू A प्लस V1 कितना था? P1 था 1000 किलो पास्कल, देखो इट वाज 1000 किलो पास्कल एंड दिस वाज 0.2 ना। सो एक इक्वेशन तो ये बन गई, A प्लस 0.2 B इज इक्वल टू 1000, है ना। याद रखना बेटा, आई हैव टेकन प्रेशर इन किलो पास्कल, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो वही याद रखना। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा? P2 इज इक्वल टू A प्लस B V2, सो P2 इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू रख देते ना, कितना है P2? 200, B 1.2 ना। सो A प्लस
1.2b इज इक्वल टू 200, है ना, ऐसा आ गया ना। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर बी। सॉल्व कर लो बेटा, एक काम करो, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए करो। The moment you are doing equation b minus equation a will be getting cancelled. 1.2b minus 0.2b will be b. So b is equal to 200 minus 1000, minus 800 आ गया बेटा। b is coming minus 800, है ना। तो अगर ये minus 800 है तो a कितना होगा, ध्यान से देखो, वहां रख देते हैं। a plus 0.2 into minus 100 is equal to how much, 1000. So this will be minus 160. So this will be minus 160 ना। So minus minus will become plus. एक बार बताना, यही आ रहा है क्या? बता दो बेटा। एक यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1160 प्लस 1.2 इंटू माइनस 800, माइनस 800 का 1.2 कितना होगा, माइनस 960। हाँ सही तो है, सही है। तो रिलेशन क्या बन गया, P इज इक्वल टू A 1160 माइनस 800 कैपिटल B। यहां तक क्रॉस चेक करो बेटा, जिसने भी पूछा था A और B से करवा दो। यही आ रहा है क्या, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। अब आगे चलें, आगे चल लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है ना। इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV 1160 माइनस 800V dV 1 to 2। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां से, what are we going to get, 1160V minus 800V square by 2 V1 to V2, है ना। So work interaction will be what, 1160 V2 minus V1 minus 400 V2 square minus V1 square। वन 160.2 minus 1.2 minus 400.2 स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 1160 माइनस 400, है ना। माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, प्लस हो जाएगा 1.2 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो कितना आएगा बेटा, कितना आ रहा है यहां पर, फटाफट से कंफर्म कर दो, हाउ मच यू आर गेटिंग, वन 1.4 इंटू हाउ मच, 1, कंफर्म करो, यही आ रहा है क्या, प्रीवियस मेथड इज बेटर ना,
अरे 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 अरे, ये उल्टा रख दिया देखो, v2 माइनस v1, 1.2 माइनस 0.2 होना चाहिए ना। नेगेटिव कैसे आ जाएगा रे बाबा? नहीं मैंने तो, आप लोग जैसा बोलो वैसा करवा दूंगा मैं तो। मैंने अपने मेथड से तो करवा दिया, तब आपने बोला इससे करवा दो तो मैंने इससे भी करवा दिया। 1.4 into 1, so W will be equal to 1160 minus 560, ये लो बेटा, इससे भी करवा दिया आपको, ठीक है। और बोलो, एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं इसको, देयर कैन बी वन मोर वे यू नो, एक और तरीका हो सकता है बेटा, एक और तरीका हो सकता है बेटा। सर ये क्वेश्चन सिर्फ कन्वेंशनल में ही आ सकता है इस मेथड से सॉल्व करने को। हाँ लेकिन देखो ये है नहीं, कन्वेंशनल का क्वेश्चन तो है नहीं, दिस इज नॉट द कन्वेंशनल क्वेश्चन। मैंने तो ऑलरेडी आपको 2 लाइन में करवा दिया ना, ये रहा डायग्राम, वर्क इंट्रैक्शन निकल गया यहां से, डेल्टा यू यहां से निकल गया, आपका क्यू आ गया, है ना। एक तरीका और है, एक तरीका और है, एक तरीका और हो सकता है क्या बेटा? एक तरीका और हो सकता है क्या? देखो एक तरीका और हो सकता है क्या? P1 गिवन है, P2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है। एक तरीका और हो सकता है क्या? PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन की फॉर्मेट में, पॉलीट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, पॉलीट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, बताया था ना मैंने आपको, पॉलीट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। अरे देखो ना, अनदर मेथड, आप ट्राई करना, पीवी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से n निकाल के कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, आप करना, आपको एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बताऊंगा बाद में, है ना। आप ट्राई करना, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा बाद में, है ना। आप ट्राई करना, इसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगी, जब n निकालोगे ना और फार्मूला लगाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, पहले आप निकालना, है ना, ठीक है। तो बेटा ये आज की क्लास तो खत्म हो गई, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे रे बाबा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड अनअकैडमी प्लस। जैसे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं यूजिंग द रेफरल कोड NEGI10, यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस बेटा। अनअकैडमी प्लस पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ऑन टाइम क्लासेस होती हैं, एक बार क्लास का टाइम फिक्स हो गया तो उसी टाइम पर क्लास होंगी, फिर वो क्लासेस होनी ही है, नो वन कैन स्टॉप दोस क्लासेस, वो क्लासेस तो होंगी ही। आपको वीकली क्विजेस मिलते हैं, डेली असाइनमेंट मिलते हैं, ऑफ कोर्स 2 subject will be running parallelly, competitive environment होता है क्लास में, you will be having the live poll and leaderboard, and of course you will be having serious teaching and serious learning, getting reduced for to 27,225 rupees. For 18 months it will reduce to 34,650 rupees. For 24 months it will reduce to 39,600 rupees. And the beautiful thing is you can pay in no cost EMI also. Yes sir, what is the meaning of no cost EMI? Let us suppose Negi Soldier is planning to join for 24 months, 39,600 divided by 24, 1650 rupees per month, that's it. You need to pay this much only, you need not to pay anything extra. This is the fee structure for Unacademy Iconic. Why to use NEGI10? You know, because NEGI10 is not just the referral code, it's an emotion which is connecting me
टू यू पीपल, है ना, नेगी सर टू नेगी सोल्जर्स, झमाझम क्लासेस टू झमाझम लर्निंग. ओके, आर यू गेटिंग टू? बोलो रे बाबा. The moment you are using Negi 10, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019 20 census paper. You will be getting the personal guidance of Mechanical Head Unacademy brands. You will be getting the personal guidance of trust of so many on Unacademy Plus, है ना. ME plus XC मतलब Negi 10, Negi 10, Negi 10. Thank you so much. करना करना, तभी तो मैंने बोला निकालो, तभी तो मैंने बोला था निकालना बेटा, है ना. उसमें एक प्रॉब्लम आएगी. देखो बेटा, डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन ना बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मोलर स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है. एक बार आपने आइडियल गैस सेलेक्ट कर ली, वंस यू हैव सेलेक्टेड द आइडियल गैस, then its molar specific heat will be depending on temperature only. रितेश, वी आर स्टार्टिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स बेटा. फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रही है मंडे या ट्यूसडे से. फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0. सो मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना. पावर प्लांट का फुल कोर्स कब आएगा? देखो कैसे कैसे चीजें आगे मैच्योर होती हैं. जब भी टाइम मिलेगा तो पावर प्लांट हो जाएगा बेटा, है ना. इस चैनल पर ऑलरेडी हो चुका है पावर प्लांट, एक बार देख लेना. हाँ, मैं देखो अभी चैप्टर वाइज मुझे काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग को प्रॉब्लम है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स करवा दो. हाँ, ऑलरेडी आई एंड आर हो चुका है बेटा, आई एंड आर हो चुका है. एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा. हाँ, बट काफी लोग नए हैं ना बेटा, उनका रह गया है. फ्लूइड काइनेमेटिक्स मैंने पढ़ाया नहीं था ना यूट्यूब पर, यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं था फ्लूइड काइनेमेटिक्स. मैंने बोल दिया था कि उससे कर लेना जो पहले पढ़ाया था. तो काफी बच्चे हैं जिनको फ्लूइड काइनेमेटिक्स, क्योंकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं. हाँ, वही मैंने बोला ना, एक बार आइडियल गैस सेलेक्ट हो गई तो, है ना. तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे पता है आप कौन सी बुक का रेफरेंस ले रहे हो, बट उसका आंसर आएगा टेम्परेचर. वंस द आइडियल गैस इज सेलेक्टेड then the answer is temperature, and if ideal gas is not selected then answer will be your atomicity, because then it will depend on n ना डिग्री ऑफ फ्रीडम. मैंने बताया था ना, मैंने ये डेराइव कर रखा है बेटा, सीपीसीवी डेराइव कर रखा है ना, आपको याद है. स्मॉल यू इज इक्वल टू एफ बाई टू कैपिटल आर टी हमने लिखा था, है ना. तो वहां से सीवी निकाला था डो यू बाई डो टी करके, स्मॉल एफ बाई टू आर. सो स्मॉल एफ इज व्हाट? इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द एटोमिसिटी. तो अगर आइडियल गैस डिफाइंड नहीं हुई है देन इट विल बी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स. बट एक बार आपने आइडियल गैस डिफाइन कर दी, आपने बोला एयर, आपने बोला नाइट्रोजन, आपने बोला हीलियम. हीलियम की बात छोड़ो, हीलियम तो उसमें आ जाती है, क्या बोलते हैं, परफेक्ट गैस में. और वो भी देखो काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. एक बार आपने परफेक्ट गैस बोल दिया तो परफेक्ट गैस का सीपीसीवी कांस्टेंट हो जाएगा. ओके बेटा, गुड 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 विश्वास, है ना. चलो फिर क्लास एंड करें. किसी को कोई डाउट है तो पूछो. एनीवन हैविंग एनी डाउट? देखो अभी फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया से अटेंड करना. फ्लूइड काइनेमेटिक्स सबको बता दो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है. फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. सबको बता दो फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है. और ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे. These questions will continue as usual. Mostly I will take an afternoon session or something, है ना. ठीक है.
पहले बाकी लोग देख लें, रिमेनिंग पार्ट अभी बाकी लोग देख लें, जो पहले कवर हो गया है वो बच्चे लोग देख लें, काफी लोगों का वो छूटा हुआ है ना एग्जाम की वजह से, एक बार वो देख लें। लाइव लोग जैसे आना स्टार्ट होंगे तो कर लेंगे, है ना। हमारा सब चीज मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा यार, दो दो मेथड से करवा दिया आप लोगों को। दो दो मेथड से करवा दिया आप लोगों को, अब तो आप लोग करो। तो उसमें प्रॉब्लम होगी, मैं अभी बताना नहीं चाहता क्या प्रॉब्लम होगी, है ना, वो तो आप लोग करो यार। देखो मैंने तो अपने मेथड से बता दिया। आई नेवर रिकमेंड यू फाइंड ए एंड बी इफ इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग हीट इंट्रैक्शन। यू कैन ज्वाइन बेटा, सेकेंड ईयर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो बेटा परेश, हाउ आर यू। चलो फिर क्लास एंड करते हैं, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।